Hi, good morning, good evening, or whatever, maybe you're from India. Jai Shri Krishna, happy Janmashtami, and I think I'm live now. Munina, I'm live now? Yes, you're live. Okay, so thanks Amul, thanks for giving me this chance to come back again and show something interesting. Today I'm doing a live session in an interesting way. I'm in the Indian street kitchen. It's a massive thing what this guy has done. My good friend, who is helping me in the cameras. He'll be doing all the questions and everything. He gave up his lawyership and his passion dragged out to make this kitchen. I know we are going through a torrid time, very very tough time. All the industry is suffering. My colleagues and all those stuff. My fellow followers and all those things. They always call me up, what's going on, and my heart goes with them. But this guy's inspiration when he came out and he started from here to there, so that's the inspiration how you build up. So never give hopes, don't give up hopes. There is always a good part, sun shining on the end of the things. And so stop my intro and stop my things. Let's go in the kitchen and start cooking. What we will cook today. Okay, let's follow me. It's a small type of kitchen and everything. Monique, just let me know if people are asking something, something like. Okay, we don't have any questions yet, but guys, feel free to ask any questions. Yeah. So what I am cooking today is a recipe which is called moqueca. Now, why I choose this recipe? It's called moqueca. Is that this is a Brazilian one. It's a Brazilian restaurant. When I'm working with Las Iguanas as a Irish chef, we used to do this recipe, which is called had two versions. One is a prawn moqueca and then is a vegetarian moqueca. So for today, being Amul is totally concentrating on the vegetarian one. I chose to make a vegetarian one with paneer. I will explain that thing. So it's actually a dish, a stew, a fish stew, which is a staple food of Brazil. And it's called, normally it's called moque de peixe. And peixe is fish. And they are quite good in its having it because it's a broth kind of thing. और ये जैसे लगता है कि ब्रॉथ जैसे टाइप का जैसे हम लोग स्टू खाता है वैसे काफी हद तक सिमिलरिटी है इंडियन का और सिमिलरिटी किसमें है ये लोग कोकोनट और कोकोनट मिल्क यूज करते हैं जीरा यूज करते हैं बेलिव यूज करते हैं गार्लिक यूज करते हैं और एक स्पेशल चीज जो है जो काफी हद तक कन्फाइंड है बट स्टिल यूज होता है वो है पाम ऑयल ये इंग्रेडिएंट में यूज होता है मैं दिखाऊंगा बाद में what is I'm using and not. So this is the main ingredient and it's a very simple recipe. You can make it in home and आपको इधर कुछ भी यूज कर सकते हो आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन बहुत सारे यूज करते हैं जैसे कॉर्न मक्का हुआ और बेबी कॉर्न हुआ ग्रीन पीस हुआ कैप्सिकम्स हुआ मशरूम हुआ यू कैन यूज एनीथिंग एंड व्हेन यू आर यूजिंग लाइक जब प्रॉन्स यूज कर रहे हो कुछ भी तो आप उससे फिश से बनाते हो तो मैं चालू करता हूँ उसको तो लेट्स स्विच ऑन this is like new grind for me so just take a pan just don't worry about anything so this recipe what I have got okay so let's show the ingredients first what I have got I have made some special paneer the paneer what I have used it this is like a special made paneer inside and what I have done मैंने कुछ इन्फ्यूज किया है कुछ चीजें जैसे थोड़ा सा जीरा दिया है उसमें और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स सूखा मिर्चा का फ्लेक्स डाला है तो पनीर इटसेल्फ आप लोग जानते हैं पनीर में थोड़ा बहुत स्वाद होता है जो लोग वेजिटेरियन मैं तो हार्ड कोर वेजिटेरियन हूँ जो भी विच इज ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू बट ये जो आपका जो पनीर है जो मैंने फ्लेवर्ड किया है बनाने का टाइम में तो इसमें थोड़ा सा वो चीजें तो जाते हैं यानी आपका वो कुछ भी डाल सकते हो ग्रीन चिली डाल सकते हो फ्लेवर्ड कर सकते हो फ्लेवर्ड अनियन है टू मीडियम साइज ऑफ ऑनियन टोमेटो चॉप टोमेटोज है और ये पेपर्स है जो ये लोग बेसिकली डालते हैं और ये है पाम ऑयल आप लोग का मेरा देसी का कंपनी केटीसी देखते हो ये इसका मैं यूज कर रहा हूँ पाम ऑयल और आपका ओके एंड अभी सुनाई दे रहा है ठीक तरह से
Okay, they're asking loud, right? Yeah, they're asking, is it a main dish, chef? Is this the main dish? Yeah, it's a totally main dish. You can have with rice. और ये राइस के साथ ही अच्छा खाना लगता है because it's a staple food from Brazil. Salt, आपको जैसे मैंने बताया कि salt, this is roasted cumin, and this is instead of the red chili powder or Kashmiri chili, I'm using paprika because I want to keep this as similar as to those things, you know. And this is crushed white pepper. भुना हुआ व्हाइट पेपर थोड़ा सा गरम करके ये दिस इज क्रश्ड व्हाइट पेपर. ओके, 2 बे लीफ, जस्ट 2 बे लीव्स, गार्लिक, एंड इसको थोड़ा सा हम लोग इधर हाबनेरो चिली बोलते हैं, उसको यूज करते हैं क्योंकि इस दे गिव अ फ्लेवर. आई हैव कोकोनट मिल्क विथ मी, जस्ट नॉर्मल कोकोनट मिल्क, एंड आई हैव अ स्पेशल इंग्रेडिएंट विच कॉल्ड हरीसा. दिस यू कैन फाइंड इन एनी स्टोर. हरीसा ये एक चीज होता है जो इसको हरीसा चिली जो होता है उसको फ्लेवर्ड देके बनाने के लिए यूज करता है. तो आज चालू करते हैं रेसिपी. तो क्या होता है उसको देखते हैं अंजाम क्या होता है. Let's start cooking. So Okay. chef, we have a question for you. You okay? Why palm oil? Can we use normal oil instead? Yeah, normal oil instead. You can, as long as you are okay with that. Always I say there is nothing wrong and right in the cooking. Whatever you taste, whatever your taste bud goes on. If it is good, that's it. Okay. Okay. So now let's start. Normal oil. Okay. So palm oil क्यों मैं use करूँगा उसके बाद दिखाऊँगा why I'm using palm oil and why it is effective to use palm oil. So put like a handful of oil over this. Let's the pan to be heat up. Okay. Pan hit जब hit हो जाएगा, when the pan will be hitting, and I will let you know. Chef, हिंदी में बात करें please. Okay, so your followers are asking you to speak in Hindi if possible. ओके, no, ठीक है. मेरा हिंदी बहुत, मैं बंगाली बाबू हूँ, मेरा हिंदी बहुत तगड़ा है. आई नो. सो बट आई यूज टू हो गया इधर रह के, बट ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी में. तो ऑयल ले, पैन में थोड़ा सा ऑयल ले. ऑयल जब सीजल होना चालू हो जाएगा, जो सीजल साउंड आना चालू हो जाएगा, उसमें आप क्या कीजिए, जस्ट डू नथिंग. ये जो गार्लिक है, ये गार्लिक पहले डाल दीजिए ऑयल में. आप अगर सामने होते तो it would have, I would have introduced then the bay leaves. Okay. So chef, how many garlic cloves do we have here? Just two. I used just 2 garlic cloves, like chopped up and everything. आप कुछ भी यूज कर सकते हो. तो इसमें क्या क्या डाला? So garlic, bay leaves, और ये habanero chilies का जो मैंने किया था, habanero chilies. Habanero chilies. इसको बोलते हैं habanero chilies. तो ये चिलीज का मैंने यूज किया है. तो ये जब होता है चिलीज आप यूज कर ले. अब ऐसे ही ट्विक करके यूज कर ले. ये होता है habanero chili. चिलीज जो इधर मिलता है. So I used 1. So let this soak up and nicely. Okay. जब आपको लगे तो गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, तो आप इसमें डालिए ऑनियन. ये कितना अनियन है? ये दो ऑनियन है. दो मीडियम साइज का ऑनियन है. Okay. देखो मैंने क्या किया है, आई एम जस्ट ट्रांसलूटिंग इट. और ये जो किचन का बर्नर होता है, ये बहुत तगड़ा हीट देता है. तो यू नीड टू कंट्रोल द हीट a little bit. Okay, control the heat. If you want to simmer it, you have to simmer the onion little bit. Simmer it up. Let it go for some time. Okay, but watch the thing that your garlic don't burn. गार्लिक को जलना नहीं चाहिए. ओके. So you can see guys, the garlic is browning and the onion is starting to release its water. It's becoming translucent. Okay. Well, Momin is trying to do the translation for this UK people, you know, don't understand. अब मेरे पास UK का आदमी बहुत, followers बहुत है. वो लोग पूछते हैं कि why can't you speak in English, you know? So मैं इस दुविधा में हूँ, क्या यूज करूँ? ये यूज करूँ या यूज करूँ? So we have a question from Shalini Srivastava. Okay. So chef, ये चिली तो सब जगह नहीं मिलेगा chef. तो can we use any other chili? हार्बेनेरो चिलीज अगर नहीं मिले तो नॉर्मल ग्रीन चिली भी आप यूज कर सकते हो. तो मैंने ये बताया कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप बना रहे हो मोके का डिश, ठीक है, लेकिन मोके का सिमिलरिटी में आप अगर बना सकते हो. देखो हम लोग क्यूमिन, कोकोनट मिल्क और ये चिलीज, ये सब इंडिया में यूज कर सकते हो. तो देखो कितना सिमिलरिटी है इंडियन क्विजिन के साथ. मैं जब खाना बनाता हूँ, पिछले बार भी बनाया था हालूमी चीज दे के जब आया था, तो उसमें भी काफी सारा सिमिलरिटीज होता है. तो ऑनियन को थोड़ा सा और भूनने देते हैं. ऑनियन जब से भून जाएगा
और ये है कि आप इसमें थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने तेल बहुत कम लिया था थोड़ा सा। ये और तो प्लेन वेजिटेबल ऑयल है ना? ये प्लेन वेजिटेबल ऑयल, और इसका खासियत यही है कि आपको ये मस्टर्ड ऑयल या दूसरा कुछ ऑयल की तरह ये भूनना नहीं पड़ता है। ये इसको जलने का या कच्चा रह जाने का कोई सवाल नहीं होता है। तो यू सी नाउ इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग अ डार्क ब्राउन कलर, हल्का सा ब्राउन हो रहा है। ब्राउनिश हो रहा है। तो जैसे ये ब्राउन होने चालू होगा getting browned up. Okay. What I do straight away, ये दो टमाटर है, 2 मीडियम साइज का टमाटर है। Okay. I just put the tomato inside, okay? आप एक चीज देखो, मैंने इसमें पहले वो नहीं डाला है। I have not put any spices yet, you know, because this food is lot of flavors and lot of things, and they intend to keep all the flavor inside. ये flavor inside रखना चाहते हैं। तो टमाटर मैंने डाल दिया है, जो 2, और बारीक, जितना बारीक आप काट सकते हो इसको, माने as long as you can keep it very soft and spices and everything, that's flavors, that's all flavors. तो मैंने ये डाला हुआ है। What I'm going to do is, now I'm going to saute it. थोड़ा सा हल्का सौते होने देता है। बिल्कुल पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया मैंने। Okay. पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, जैसे हम लोग का इंडियन क्विज़िन में होता है कि हम लोग पानी यूज करते हैं थोड़ा बहुत। Okay. And ये तो लो फ्लेम में कुक कर रहे हैं ना शेफ? या लो एकदम लो फ्लेम में कुक कर रहे हैं। ओके, नाउ फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग इज दैट थोड़ा सा सॉल्ट इसमें यूज कर रहे हैं। Okay. ओके, केयरफुली सॉल्ट यूज कीजिएगा क्योंकि पाम ऑयल में थोड़ा सा सॉल्टी नेचर होता है। So just 1.5 tablespoon of salt. Okay, chef. So we have some new viewers. They've just joined. They're asking what are we making. So I think they missed the description in the beginning. Okay, we are making a moqueca. Moqueca is a Brazilian staple food. Okay. Which is a fish stew. ये fish stew की तरफ है। ये broth है। ये एक टाइप का thick broth है जो हर वक्त ब्राजील का आदमी लोग ये पसंद करता है। मोकेका, इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। Okay. और इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं अगर आप खाए तो, लेकिन नॉर्मली चावल के साथ ही खाया जाता है। Okay. they prefer with rice. ओके, और ये क्या है ना, जो मैं खाना जब चुनता हूँ, मैं बहुत सिंपल खाना चुनता हूँ क्योंकि कॉमन आदमी का खाना होना चाहिए। Okay. It should be the common people food, you know, always. That's I Okay. prefer. So they're asking how do you pronounce the name of this dish? Paneer moqueca. पनीर मोकेका। Again, chef. Paneer. मोकेका। You guys got that? Paneer moqueca. और ये एक्चुअली है, पहले बता रहा हूँ, आज जन्माष्टमी का दिन है, कृष्ण भगवान का, उसीलिए वेज है, लेकिन एक्चुअली है क्या, ये एक फिश स्टू है। So मच्छी का स्टू है। अगर बनाना चाहो तो प्रॉन से बना सकते हो। Okay. लेकिन but for vegetarians, chef, if they don't like paneer, can they use something else? yeah, they can use, I told you, they can, वो मक्का यूज कर सकते हैं, ग्रीन पीस यूज कर सकते हैं, बहुत सारे हम लोग के ये कॉर्जेट मिलता है या मीठा आलू मिलता है, यू नो, शकरकंद मिलता है, यूज कर सकते हो एनीथिंग, व्हाटएवर। मैं हमेशा यही बोलता हूँ मुनीम की खाने में कोई ट्रू या कोई फॉल्स नहीं होता है, यू नो, व्हाटएवर यू लाइक इट्स मेकअप। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ थिंग्स। ये थोड़ा सा मैं फ्लेम से हटा दिया। ये क्या स्पाइस है? ये है रोस्टेड क्यूमिन चिलीज। वो कितना डालेगा? जीरा 1.5 tablespoon. Okay. Sorry, teaspoon. Teaspoon. So Sorry. chef, how many portions, how many people will this feed? This around 3 people. Easily. 3 people. Okay. Yeah. So easily a small family you can feed. Easily a small family. ये थोड़ा सा वो है। आप देखना कैसी तरह से ये फीड होता है। तो मैंने क्यूमिन डाला है, और ये जो है ये है पेपरिका। आजकल पेपरिका सब जगह मिलता है भाई। और ये कितना डालेगा? Exactly one Exactly spoon. same. Okay. So, And little bit more. Okay. Okay. So it depends how spicy you want your dish. Okay. So ये देखो, ब्राजील का मेरे को खाना बनाने इसलिए अच्छा लगता है डिफरेंट कंट्री का, क्योंकि देखो कितना सिमिलरिटी है। ये हम लोग पेपरिका यूज किया इधर। नॉर्मली आदमी लोग क्या करता है, नॉर्मली आदमी लोग वहाँ पे रेड चिली यूज करता है,
या कश्मीरी चिली यूज करता है, ये लोग पेपरिका यूज करता है। ओके, सॉल्ट मैंने डाल दिया है, क्यूमिन पाउडर मैंने डाल दिया है, ये मैंने और थोड़ा सा मैं डालूंगा, मेरे को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। ये क्या है? थोड़ा सा मैं डालूंगा क्रश्ड व्हाइट पेपर। ये तो इंडिया में मिलेगा या ना? एकदम क्रश्ड व्हाइट पेपर सब जगह मिलता है, या ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो अगर आप व्हाइट पेपर नहीं मिल रहा है। व्हाइट पेपर थोड़ा So guys, white pepper and black pepper. You can Okay. use both. So goes there. So now Chef, I think we have a comment from a friend of yours, Mahima Sarin. She said, you must be remembering Gaurav Sarin while making paneer. Gaurav used to be my sales manager, you know, वो stunning guy. Used to be my sales manager in Indore. और पनीर तो मैं भूल ही नहीं सकता, बेचारा वेजिटेरियन है, पनीर छोड़ के कुछ खाता नहीं था। महिमा, hi, nice to meet, nice to say hello from you. And really I miss those days when I be the ex-chef of this Okay, thing. and we have a lot of people saying, Chef, अब तो tomato seed use किया। ये क्यों? Tomato seed, tomato में seed है ना, टमाटर का हाँ, seed। टमाटो ये- मैंने जस्ट होल टमाटो लेके चॉप किया है, डीसीडेड नहीं किया, कुछ नहीं किया है। Okay. क्योंकि घर का खाना है और कॉमन आदमी बनाता है, तो बिंदास यूज कीजिए। Okay. देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, खाने में कोई गलत तो कोई सच नहीं हो सकता। Okay. मैं शेफ हूँ, इसलिए जो मैं बना रहा हूँ वो गलत है और दूसरा सब ये नहीं है। Okay. Whatever you feel like and taste your food, that's it. Okay, so we have 340 viewers. A lot of people have just joined, so they're asking for a recap of the recipes. ओके, रिकैप ऑफ द रेसिपी। भैया मैं थोड़ा सा पैन को हटा दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये टुडे वी आर मेकिंग मोकेका। यू नो, टुडे वी आर मेकिंग मोकेका विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू सम काइंड ऑफ इंडियन डिश। बिकॉज व्हाट, फिर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या क्या यूज कर रहा हूँ मैं, कोकोनट मिल्क यूज कर रहा हूँ, मैं तेल यूज किया, मैं भुना जीरा यूज किया, मैं पेपरिका यूज किया, मैं पनीर यूज किया। पनीर मैंने बनाया एक स्पेशल टेक्निक से, ये मेरा पनीर है, ये पनीर ये तो homemade है ना? होममेड ये पनीर, खुद बनाया? होममेड पनीर, जो उसमें मैंने चिली इन्फ्यूज किया हो और मैंने थोड़ा सा जीरा का पाउडर इन्फ्यूज किया हो। सो इसमें आप भी कुछ भी इनोवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि पनीर जो है थोड़ा सा उसमें टेस्ट कुछ ब्लांट आता है मेरे हिसाब से। सो उसमें जब आप यूज करोगे तो इजी हो जाता है। और इसमें कैप्सिकम्स भी है, और जो स्पेशल जो है, जो अभी तक बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इंडिया में अभी तक वो नहीं हुआ, ब्राजीलियन में बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, पाम ऑयल। और एक हरीसा जो चिली का पेस्ट आता है, हरीसा चिली पेस्ट, वो मैं यूज कर रहा हूँ। हरीसा चिली पेस्ट, ये स्पेशल चिलीज होता है। सो ये चिलीज मैंने यूज करता हूँ क्योंकि ये लोग फ्लेवर्ड है, और कोकोनट मिल्क। सो मैंने पहले ऑनियन को भून लिया है, उसके बाद टमाटर डाला So है, इसमें 2 onion, maybe 2 cloves of garlic. two clove of garlic nicely chopped, 2 medium size of onions, 2 medium size of कांदा और टमाटर, ये सब एकदम बारीक चॉप करके भून के, सादा ऑयल के साथ भून के, दैट्स इट। ओके, ये सब अभी बाकी है ना डालने का? सो उसमें डाला है मैंने, सॉल्ट ऐड किया है मैंने, व्हाइट पेपर ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा पेपरिका ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा भुना जीरा यूज किया। अच्छा, आप देखना ना कि यू सी दैट आई हैव नॉट यूज दिस कैप्सिकम येट। व्हाई आई हैव नॉट यूज दिस कैप्सिकम? बिकॉज मैं चाहता हूं कि वो लोग जैसे फ्लेवर करते हैं कि कैप्सिकम का थोड़ा सा वो लोग वो लाता है, कैप्सिकम का फ्लेवर लास्ट में थोड़ा सा जो आरती फ्लेवर रहता है, जो मिट्टी का जो सुगंध उसमें आता है, वो यूज करता है। तो इसमें काफी सारा हेरिटेज। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बोला, आप अगर पनीर नहीं डालना चाहते हो, आप मक्के डाल सकते हो, या बेबी कॉर्न या ग्रीन पीस, you can use capsicums, you can, but don't use like bacon sir, because वो भरता हो जाएगा। We have a question from Meeta Chandiramani. Can we use dry fruits instead? Dry fruits Dry fruits instead of paneer? Interesting. I have not thought about that, dry fruits, but you can try. मैं बोल रहा हूँ you can try. मैं try करता हूँ. Chefs always tries, you know, nothing less. Okay. So let's move ahead with the recipe. So now I have done all those things. What I will do is that now I will add up my palm oil. Munir, can I get a small spoon? Of course. Dada? No problem. Okay. Okay, so now इसका क्या होगा? ये जो आएगा, you see the palm oil. Why I'm saying this palm oil is important, because the thing, ये जो palm oil, ये दो is very hot here. No problem. Thank you, Munir. Okay, so the thing is that, you know, the palm oil I'm using two and like 3. Okay, so इसमें मैंने 3 छोटा चम्मच का palm oil डाला है.
So और इसका इफेक्ट आप देखना कैसे ये कलर चेंज कराता है और इसका कैसे वो है, क्योंकि पाम ऑयल का कुछ अलग ही फ्लेवर है। आप अगर पाम ऑयल यूज नहीं करना चाहते हो तो दूसरा कुछ भी ऑयल, सिंपल ऑयल, व्हाइट ऑयल और जो भी यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज गोज लाइक दिस। ओके, नाउ इसको मैंने आई कैन स्मेल इट ऑटोमेटिकली, द स्मेल इज कमिंग, यू नो। नाउ अभी क्या करूंगा, अभी मैं इसको हरीसा चिली जो है, थोड़ा सा चिली पेस्ट इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी कर रहा हूँ। ये भी तो ब्राजीलियन चिली है ना? हाँ, हरीसा Brazilian है, हरीसा हाबनेरो, ये दोनों भी ऑल ब्राजीलियन। ओके, सो खाने में वही लगता है, तो इंडियन में आप यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग कुंकनी, जैसे ये डिश मेरे को लगता है बहुत कुंकनी की तरफ से बहुत रिलेटेड है। सो दैट्स ऑल कुकिंग एंड एवरीथिंग। Okay, chef. So a lot of people are cooking from home at the moment. Yeah. They're asking, they don't have palm oil at home. Can they use any other oil? Yeah, I told. क्योंकि ये भी नहीं मिलेगा ये easily नहीं, इंडिया में. ठीक है, ये लॉकडाउन का पीरियड है, मालूम है, ये बहुत टफ पीरियड है, तो आप बिंदास आपको जो मिलता है ना, जो व्हाइट ऑयल मिलता है उसमें यूज करो, और बाद बाकी इंडियन इंग्रेडिएंट सबको तो इसका पर्पस क्या है ये palm oil का? जो है, जो पाम ऑयल जो है, देखो, एक तो ब्राजील में पाम ऑयल का वो जो है चालू हुआ था, वो सिलसिला ब्राजील से चालू हुआ था, पाम ऑयल देना और ये सब करना। तो दिस एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम ब्राजील इन द पाम ऑयल हिस्ट्री। सो ये जो चालू है, उन लोग का ट्रेडिशन वाइज ये करता है, और ये एक अलग फ्रेगनेंस देता है। ये तो हेल्थी है भी है ना? और हेल्थी, और कलर भी देखो, ये वो क्यों स्टॉप कर दिया इसको, क्योंकि ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट जो है, जहाँ पे उगता है ज्यादा, वो खत्म हो रहा है। Okay. तो उसी के वजह से ये लोग रेस्ट्रिक्शन कर दिया है। See some very interesting information here, guys. Yeah, very informative। वो घी भी चलेगा ये? Instead of I've got some questions. चल सकता है, लेकिन घी क्या करेगा, वो जो घी का जो अरोमा निकलता है ना, वो सारा डिश को बदल देगा। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट, यू नो, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज ऑफ माय कुकिंग। सो नाउ मैं ये पेपर्स जो मैंने थोड़ा स्लाइट, जिसको जूलियन बोलता है, छोटा जूलियन काट के रखा हो, हम लोग का होटल इंडस्ट्री का बात है, जूलियन बोला है, तो इसको थोड़ा सा डाल के देता हूं मैं, और हो गया। तो मैंने जस्ट टू स्लाइस ऑफ पेपर्स यूज किया मैंने। तो देखना इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है ये डिश। ओके, शेफ जीभ में पानी आ गया। तो सॉल्ट अभी टेस्ट करूंगा। सो आफ्टर आई विल फिनिश। ओके, now I am going to use it. My almost last ingredients ये है। So ये क्या है? कोकोनट मिल्क। Coconut, beautiful. ओके, तो अभी देखना ये डिश कैसे निखर के आएगा। कोकोनट मिल्क मैंने यूज कर दिया है। ओके, सो ये एक्चुअली Beautiful color. तो आप देखना, वो ये लोग जो मेरे सामने हैं, जो रायन थॉमस, he's my main cameraman, Ryan Thomas, then Munin, वो लोग स्मेल कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली एक वो उसका अरोमा जैसे आ रहा है, उसका पूरा अरोमेटिक हो रहा है। Let me grab little bit of more coconut milk from there. So guys, we can see it's nice and creamy from the coconut, and we have all these beautiful colors from the red peppers, the green peppers, the sorted onions, the garlic. The palm oil is given that color as well. Color as well, and this is nice texture. Okay, now I add little bit of, so this is my stock, or this is my water for making the stew. Okay. I don't use any water. मैंने water नहीं use किया है, मैंने सिर्फ कोकोनट मिल्क को रखा है इसको ब्लेंड करने के लिए, इसको करने के लिए। ठीक है, now what we will do, इसमें तो वेजीज भी डाल सकता है ना? Yeah, now I will just taste it, you know, the salt. क्या बात है? Munin, I just want you to taste a spoonful, you know, if you get a spoon and something, and taste it. So guys, you can see the consistency here is a nice, at the moment it's still watery, but this will thicken up. Yeah. As we cook, it will get thicken up. Let me try the sauce for salt. It's nicely balanced, you know. Oh, beautiful. No, seriously, it's balanced up. So, Boys, his kitchen, so he's a chef. guys are Chef asking, so cooking. when does the paneer go in? So I think we're just Yeah. waiting for chef. We're just So waiting for this to just reduce. Now, And then paneer we will डालेंगे just इसमें. put the paneer. Now, what I did, now paneer, ये जो बनाया मैंने पनीर को,
तो मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जो पनीर जैसे मैंने बनाया, जो नींबू का रस देते हो और विनेगर डालते हो, जो दूध को होल मिल्क यूज कीजिएगा, पनीर शुड बी ऑलवेज मेक इन होल मिल्क। तो ये जो पनीर मैंने यूज किया था, वो जो एक प्रोसेस होता है, देयर इज अ प्रोसेस व्हेन यू डू द पनीर, व्हाट यू डू इज, मैं थोड़ा सा और मिल्क यूज किया। सो ये सॉरी, ये जो मिल्क है, तो आपको पता चल रहा है मैं पानी की तरह इसको यूज कर रहा हूँ, जो थिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ला रहा हूँ, तो उसी में ये बैलेंस होगा। तो ये मुनीर ने टेस्ट किया है, तो ये डिश ऑटोमेटिकली क्या हुआ है अभी, इट हैड बिकम लाइक अ बैलेंस थिंग। अच्छा, so people are saying ये बहुत rich लग रहा है, it's rich but it's good in flavor and good it's in nice, flavor it's and nice on the mouth. Nice in the mouth, but it's seriously it's not rich because it doesn't have butter, doesn't have too many. Just I used two teaspoon of palm oil. That's why it's looking like rich. And ये पनीर, how come you didn't fry this paneer? They're asking. No, for me, when I do paneer and when I do use the paneer, I don't fry it. Okay. Because as soon as you fry it, एक crumb. जब फ्राई हो जाता है वो एक लेयर क्रिएट करता है बाहर से। और ये यूज होता है थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल यूज में, जो वो फ्राई करके रखता है, बिकॉज उन लोग को ज्यादा यूज करना है। तो आप लोग को अगर पनीर का स्वाद अच्छा लेना है तो जस्ट सिंपल यूज करो, घर में बनाओ पनीर और यूज करो, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं पनीर कैसे बनाना है घर में। ओके, सो ये देखना थोड़ा सा हल्का सा उसका वो भी आ रहा है, क्योंकि ज्यादा हिलाओ मत, ये टूटने लगेगा, क्योंकि पनीर हमने घर में बनाया, बहुत सॉफ्ट है इसका पनीर। और जो मैं बोलने जा रहा था, व्हेन आई मेक द पनीर, व्हेन यू कडल इट विथ आइदर विनेगर और लेमन जूस, वो जब आप उसमें डालते हो, मसलिन क्लॉथ में डालते हो पनीर निकालने के लिए, तो आदमी बहुत धोता है उसको, थोड़ा सा स्ट्रेन करता है वो। मैंने थोड़ा सा कम धोया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो जो खट्टापन है इसमें थोड़ा सा खट्टा जाता है बाद में, वो पनीर से ऑटोमेटिकली वो खट्टापन वो जूस में पूरा आएगा। And after this we will test, Munir will test and Ryan will test whatever. So ये तो originally fish dish है ना, fish use करता है। ये fish use So करता we have है। a question. If we use fish, do we need to marinate the fish cubes with lime juice, salt and pepper? No. The fish is the technique. I can tell you the quick recipe for What's that. the recommended fish for this dish? Prawn. Prawn. Okay. वो prawn मुके का जब बनाते हैं, with shell prawn लीजिए और shell को अलग कीजिए, और shell के साथ थोड़ा सा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा palm oil लीजिए, थोड़ा ऑनियन लीजिए और शेल को थोड़ा सा भूनिए, और वो शेल जब भून जाए, जो सॉफ्ट होना है, उसको प्यूरी करके सीव कीजिए। सीव करके उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो आप आराम से उसको, बाद में आप प्रॉन जैसे भी यूज करो। नॉर्मली मैं प्रॉन भी फ्राई करता नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग फ्राई करके। और ये जो डिश जो बनता है ना, ये क्ले ओवन में बनता है, ये क्ले प्लॉट में बनता है। एक क्ले प्लॉट लेता है, उसमें क्ले में, और सर्व भी होता है क्ले में। हम लोग जब लासी गोनस में मुनीन, we used to serve it with rice and in a clay pot As a main dish. as a main dish. Clay pot, उसमें नीचे आग जलता रहता था और ये clay pot में पकता रहता था। ठीक है, तो I will just finish it off with a little bit of more coconut milk. Can you use normal milk as well, chef? Or it has Yeah, to be... you can use normal milk, but you have to choose something for the consistency. Okay. Because what you see, what the consistency I got is a little bit different. Okay. So everyone that's just joined, so we are making a paneer moqueca here today. You can also use prawns. This is originally a fish dish, so you can use seafood. Everybody asking, we have 2 onions, we have garlic, we have tomatoes, we have green peppers, red peppers, we have whole white pepper, we have salt, paprika, harissa paste, we have palm oil. So I think we're at the final stage now. So I think chef is preparing to plate up now. So I take a lemon. I just उसका रस निकालने के लिए थोड़ा सा उसको ये कर दिया। ये तो बहुत पुराना टेक्निक है ना शेफ? ये बहुत पुराना टेक्निक है। Just want to take out the wedges, So just one wedge of lemon. Take out the seed out. Take the seed out. Okay, just keep it like this. Okay. I just take some fresh herbs. ये तो धनिया है ना? No, this is parsley. Parsley. Okay. Okay. This is parsley. Okay. Just chop it as fine as you possible, So ये finely chopped है. Yeah. Very nice. So And ये this is thyme. Thyme. Okay.
This is available in India as well, isn't it, chef? Yeah, Thyme, rosemary, thyme. rosemary, thyme. If they, I don't know whether it is available freshly Fresh or not, milta hai? but you can get it easily the dry thymes, you know. Okay. Okay, now this is coriander. Coriander, dhania. Okay, dhania. So these are automatically thyme as a flavor, you know. So we got it done here. So it's so stingy. And what we will do, we'll add both parsley and these things together and take a few notch from here and add to my stuff here. Okay, so back to the cooking now, Back guys. to the cooking. You see, this is a very colorful dish, you know. Oh, beautiful. Don't stir it too much because the paneer will start to break almost. Show us the consistency, chef. What kind of consistency Yeah, we are it's after? there. Okay, so nice and thick. You let the coconut milk reduce. Yeah. So that's it. Our thing is done. For me, I will just add up little bit of with my hand. Just a sprinkle full of white pepper. That's it. I don't use the crusher or anything. That's it. Finished. Now we will go for the plating. So just take a normal plates. Thank you, Munesh. Put it here. Okay. So just use a spoon. Okay. So I use now a spoon to do that. Oh, beautiful. Right, are you getting them the fragrance and the? Can you smell that? Yeah. Smells beautiful. You can smell the coconut. You can smell the garlic. You can smell the palm oil. Yeah. It's all coming through together. And just look at this plating up, guys. Beautiful. ये तो रोटी भी साथ रोटी. Yeah. That's why I said. So with meaning roti and chawal. Indianize करके मैंने बनाया कि you get used to, you know. Let's put little bit of paneer on the top. Sorry guys, मैंने आप लोग तो टेस्ट नहीं कर सकते, ये लोग टेस्ट करेगा. They will test it out. कोई बात नहीं. And you know, so you have the flavor there. For me, everything is important. The color, the thing is up. Okay. So what I do, I put 2 tablespoons of thyme. I make even the just little bit of more presentable. Put a lemon wedges here. Okay. And couple of parsley around. Beautiful. And Very nice. spray this. So guys, here is your paneer mokhega. You can make it whatever you like. Prawn mokhega, veg mokhega. So आपने देखा ये कितना simple चीज़ है and it's really easy to make. It's really important to know what things you are using and how you are using. But this is very simple recipe. And I'm glad that I've done with Munin today in his kitchen. Thanks, Munin. Everybody is saying it's been very well explained as well. Yeah, so nice. Thanks to you, Munin ने बहुत help किया. And probably मेरा जो YouTube channel है Heritage, I'm taking this advantage. Amul, sorry about that. और ये Indian kitchen will work together. भगवान अगर चाहे तो, you know. And you guys stay well, stay very happy, you know. Fight the tough time out. And Happy Janmashtami as well. oh, Janmashtami, yeah, happy Janmashtami. I know Munin is saying me all those things I want to say. Happy Janmashtami, everything. मैंने लिखा भी है कि Lord Krishna सबको इस मुसीबत से उतारे, you know, just help us out to take it this dangerous situation out, and we will be out. भगवान चाहे तो we will be out of the situation, and my heart goes with that, you know. इसलिए मैं बहुत humble तरीके से बोल रहा हूँ कि जो मैंने बनाया बहुत घर का खाना है, आप यूज कीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, और ये सिचुएशन जाएगा, जल्दी चला जाएगा. एंड आई होप ये एक्सप्लेन्ड है. और मेरा यूट्यूब चैनल जो है हेरिटेज, उसमें आप ये रेसिपीज देख नहीं सकोगे. ये रेसिपी सारे जो है वो शेफ, ये यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, जस्ट फॉर पीपल टू नो? हेरिटेज. हेरिटेज. ओके. हेरिटेज ट्रेडिशनल क्विजिंग.
Okay. और इसमें दो पार्टिसिपेंट और है जो बांग्लादेश और इंडिया से भी करेगा, तो हम दिस इज माय चैनल व्हिच इज कमिंग अप. ओके, हैप्पी जन्माष्टमी एवरीथिंग टू एवरीबॉडी, एंड होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू अमूल for bringing me again, and thanks Mehul, and thanks Abhishek for ringing me up all the way from India every time when you need it, and I am there with you whenever you need me. Thank you.